friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to start a new chapter that is Introduction from Indian Economic Development of Economics. Okay, and in this video we will discuss what are the topics of this chapter and also I will give you an introduction of this chapter. Okay, so now let's start. The first topic of this chapter will be what is Indian economy. First we will know about what is Indian economy, then features of Indian economy at the time of independence. We will know about the features of Indian economy when at the time of independence. ठीक है, so these are the subtopics which will come under the features of Indian economy at the time of independence. The subtopics are colonial economy, semi-feudal economy, stagnant economy, backward economy or underdeveloped economy, depleted economy, dependent economy, disintegrated economy. Okay, so these are the subtopics which will come under this topic. So now let's see. Next topic will be state of major economic sector. So we will see the state of major economic sectors. So first we'll see the state of agriculture, then industrial sector, foreign trade, infrastructure, demographic structure, occupational structure, and then we will have the last topic, that is some positive impacts of British rule. So with this topic we will complete our chapter. So these are the topics which will be there in this chapter, the very first chapter of Indian economic development. Okay, so अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं. ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 टू 1947. तो जो ब्रिटिश रूल था इंडिया पे वो कब से कब तक था? 1757 से 1947 तक था. ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्लासी बैटल. प्लासी बैटल होने के बाद 1757 में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया इंडिया पे. ठीक है, ड्यूरेशन क्या था? लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स. 200 ईयर्स तक ये चला. ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या था? पहला, इंडिया बिकेम पुअर. इंडिया बहुत प्रॉस्परस था, बहुत रिच था, बट इट बिकेम पुअर because of British rule. India is not a poor country. Thanks to the British rule, it is a country of poor people. और ये statement किन्होंने दिया था? It was remarked by R.C. Dutt. दूसरा impact था backward and stagnant economy. Stagnant मतलब थम जाना, रुक जाना, grow नहीं होना. ठीक है, so backward and stagnant economy. A once prosperous economy was turned into a poor country. जो एक समय पे बहुत prosperous economy था वो एक पुअर कंट्री में टर्न हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश का पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था टू मेक इंडिया अ फीडर इकोनॉमी फॉर अ ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री. फीडर मतलब फीड, याद रखना. फीडर मतलब वो चाहते थे कि इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ के लिए, उनके इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ करने के लिए उन्होंने चाहा कि इंडिया को फीडर इकोनॉमी बना दे. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक दैट इज़ व्हाट इज़ एन इकोनॉमी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमी का. An economy is a structure. Economy is a structure where various economic activities are performed. So, economy क्या है? Economy एक structure है जहाँ पे various economic activities perform किए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे कि agriculture, industries, banking, insurance, communication, etc. तो जो economic activities के examples है ये सारे. ठीक है, हम अभी इकोनॉमी के कुछ मेन फंक्शंस देखते हैं. जैसे कि पहला है प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड. तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और सोर्सेज प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इंडियन इकोनॉमी का, उसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो दैट दोज आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं एंड टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट इज टेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम 1947. तो 1947 में
इन सारे सेक्टर्स का नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन था, उस चीज़ का ये टेबल है. सो लेट्स सी. नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर का 58.7%, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का 14.3%, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर का 27.0%. सो इस टेबल से समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का था इन 1947. सो कंक्लूजन हम ये बता सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर वॉज द डोमिनेंट सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो डोमिनेंट सेक्टर था कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये टॉपिक बहुत ईजी था एंड ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं था. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? आज हम सेकेंड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो लेट्स बिगिन. तो ये जो टॉपिक है इसके नीचे सबसे पहला सब टॉपिक जो आता है दैट इज़ कॉलोनियल इकोनॉमी. तो लेट्स स्टडी अबाउट कॉलोनियल इकोनॉमी. इंडिया हैड अ स्टेटस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी. इंडिया का स्टेटस कैसा था? कॉलोनियल इकोनॉमी. उसके बाद कॉलोनियल इकोनॉमी रूल एंड कंट्रोल बाय फॉरेन पावर. मतलब कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या था? रूल और कंट्रोल बाय अ फॉरेन पावर. ठीक है. उसके बाद इंडिया फीडर इकोनॉमी फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. तो जो इंडिया था वो एक फीडर इकोनॉमी था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज सप्लाइड रॉ मटेरियल्स. तो जो इंडिया था वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था. उसके बाद कंज्यूम्ड फिनिश गुड्स मेड बाय इंडिया. और इंडिया कंज्यूम करता था फिनिश गुड्स विच वॉज मेड इन ब्रिटेन. ठीक है. उसके बाद ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस वेर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन. तो जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस थे वो किसके इंटरेस्ट में बनाए जाते थे? ब्रिटेन के इंटरेस्ट में. ठीक है. Let's see the next subtopic, that is semi-feudal economy. Two coexisting system, federalism, capitalism. ठीक है. Federalism in agriculture, landlords, lagan, poor peasants. Capitalism in industries. Capitalism where in industries, जैसे कि cotton industry, jute industry, iron industry, etc. ठीक है. So now let's see. India inherited feudal feature, land, tenure, exploitation. उसके बाद कैपिटलिस्ट फीचर्स, लेबरर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. तो जो इंडिया था उसने दो फीचर्स इनहेरिट किया था. कौन सा? फ्यूडल फीचर्स और कैपिटलिस्ट फीचर्स. ठीक है. उसके बाद इंडिया हैड बोथ जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट बट पीपल रिमेन्ड पुअर. तो इंडिया में सब दोनों ही थे, जमींदार्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, बट फिर भी लोग पुअर थे. ठीक है. उसके बाद थर्ड सब टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज़ स्टेगनेंट इकोनॉमी. स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? नो ग्रोथ और डेवलपमेंट. स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब है ग्रोथ ना होना और कोई डेवलपमेंट ना होना. ठीक है. ब्रिटिश मेड नो एफर्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम. तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला इंडिया का नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में. ठीक है. तो दादा भाई नौरोजी 1867 to 68 इन्होंने पहली बार इंडिया का नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था. ठीक है. सो ही वॉज द फादर ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. वो फादर थे नेशनल इनकम का इंडिया पे. उसके बाद उन्होंने एस्टिमेट किया था कि ₹340 करोड़ और पर कैपिटा क्या होगा? ₹20 पर ईयर. ठीक है. उसके बाद VKRV राव 1931 to 32 फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट. तो इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेशन किया था. ठीक है. नेशनल इनकम उन्होंने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम ₹1689 करोड़ और पर कैपिटा क्या होगा? ₹62. ठीक है. उसके बाद ग्रोथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज इक्वल टू लेस देन 2%. तो जो ग्रोथ रेट था इंडिया का ड्यूरिंग कब? ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो था लेस देन 2%. 2% से भी कम था. तो ठीक है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने इस टॉपिक का 15 सब टॉपिक किया है. नेक्स्ट वीडियो में विल डू 4 more टॉपिक्स अंडर दिस टॉपिक. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक दैट इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. और इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है एंड वी डिड 3 ऑफ द सब टॉपिक्स. और इस वीडियो में हम कुछ और सब टॉपिक्स देखते हैं इस टॉपिक के अंदर. सो फोर्थ सब टॉपिक इज़
बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया हैड अ बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया का इकोनॉमी कैसा था? इट वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो वेरी लो पर कैपिटा इनकम, पहला पॉइंट था वेरी लो पर कैपिटा इनकम था। सेकेंड, मास इलिटरेसी, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी था। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल लैक्ड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर था और उनको फूड नहीं मिल रहा था, क्लोथिंग नहीं था, हाउसिंग नहीं था प्रॉपर। सो इन तीन चीज़ों से हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी था, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। मेन कॉजेज देखते हैं बैकवर्डनेस के पीछे। सो पहला, लैंड टेन्योर सिस्टम। तो जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो एक रीज़न था जिसके वजह से बैकवर्ड इकोनॉमी था हम लोग का, ठीक है। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ज़मींदारी सिस्टम, क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सेकेंड इज ज़मींदार्स कलेक्टेड रेंट्स, ज़मींदार जो थे उन्होंने रेंट कलेक्ट किया बट डिड नॉट इम्प्रूव एग्रीकल्चर पर। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेटरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज थे डिस्क्रिमिनेटरी थे, ठीक है। सो फोकस ऑन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज नॉट इंडियन डेवलपमेंट। तो जो पॉलिसीज था वो सिर्फ फोकस करता था इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के ऊपर, ना ही इंडिया का डेवलपमेंट के ऊपर। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन यूज्ड एज मार्केट एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो इंडियंस थे, हम लोग इंडिया को कैसे यूज़ किया गया? एज अ मार्केट एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ब्रिटिश टुक इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड। सेकेंड, होम चार्जेस, मतलब उनके वहाँ का जो खर्च था जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, वो सब इंडिया एक्सपेंस उठा रहा था उन सब चीज़ों का। सो तब वेल्थ का ड्रेन हुआ, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इज कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी। सो कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी देखते हैं क्या था, क्या पॉलिसीज था। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो ब्रिटेन कंट्रोल करता था। सो मोनोपोली थ्रू स्विस कैनल रोड्स। सो मोनोपोली थ्रू स्विस कैनल रोड ओपनड इन 1869। स्विस कैनल कब खोला गया था? 1869 पे, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज डिप्लीटेड इकोनॉमी। तो अभी हम डिप्लीटेड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डिप्लीटेड इकोनॉमी है उसका मतलब क्या है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा वर्न आउट मशीनरी का और एसेट्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल हुआ था, ठीक है। लैक ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। फिर तीसरा पॉइंट है वर्ल्ड वॉर 2 इम्पैक्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 2 इम्पैक्ट, सो ये सारे रीजंस थे, ठीक है। और अभी हम देखते हैं रिजल्ट क्या था। लो प्रोडक्शन, डैमेज्ड एसेट्स, एम्प्टी स्टॉक्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इसका और 2 सब टॉपिक बाकी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिमेनिंग 2 सब टॉपिक्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है एंड वी डिड 3 ऑफ द सब टॉपिक्स। और इस वीडियो में हम कुछ और सब टॉपिक्स देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। सो फोर्थ सब टॉपिक इज बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया हैड अ बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडिया का इकोनॉमी कैसा था? इट वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो वेरी लो पर कैपिटा इनकम, पहला पॉइंट था वेरी लो पर कैपिटा इनकम था। सेकेंड, मास इलिटरेसी, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी था। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल लैक्ड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर था और उनको फूड नहीं मिल रहा था, क्लोथिंग नहीं था, हाउसिंग नहीं था प्रॉपर। सो इन तीन चीज़ों से हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी था, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। मेन कॉजेज देखते हैं बैकवर्डनेस के पीछे। सो पहला, लैंड टेन्योर सिस्टम। तो जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो एक रीज़न था जिसके वजह से बैकवर्ड इकोनॉमी था हम लोग का, ठीक है। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड ज़मींदारी सिस्टम, क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सेकेंड इज ज़मींदार्स कलेक्टेड रेंट्स, ज़मींदार जो थे उन्होंने रेंट कलेक्ट किया बट डिड नॉट इम्प्रूव एग्रीकल्चर पर। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेटरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज थे डिस्क्रिमिनेटरी थे, ठीक है। सो
फोकस ऑन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज नॉट इंडियन डेवलपमेंट। तो जो पॉलिसीज था वो सिर्फ फोकस करता था इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के ऊपर, ना ही इंडिया का डेवलपमेंट के ऊपर। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन यूज्ड एज मार्केट एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो जो इंडियंस थे, हम लोग इंडिया को कैसे यूज़ किया गया? एज अ मार्केट एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ब्रिटिश टुक इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड। सेकेंड, होम चार्जेस, मतलब उनके वहाँ का जो खर्च था, जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, वो सब इंडिया एक्सपेंस उठा रहा था उन सब चीज़ों का। सो तब वेल्थ का ड्रेन हुआ, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इज कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी। सो कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसी देखते हैं क्या था, क्या पॉलिसीज था। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो ब्रिटेन कंट्रोल करता था। सो मोनोपोली थ्रू स्विस कैनल रोड्स। सो मोनोपोली थ्रू स्विस कैनल रोड ओपनड इन 1869। स्विस कैनल कब खोला गया था? 1869 पे, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज डिप्लीटेड इकोनॉमी। तो अभी हम डिप्लीटेड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो डिप्लीटेड इकोनॉमी है उसका मतलब क्या है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा वर्न आउट मशीनरी का और एसेट्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल हुआ था, ठीक है। लैक ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। फिर तीसरा पॉइंट है वर्ल्ड वॉर 2 इम्पैक्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 2 इम्पैक्ट, सो ये सारे रीजंस थे, ठीक है। और अभी हम देखते हैं रिजल्ट क्या था। लो प्रोडक्शन, डैमेज्ड एसेट्स, एम्प्टी स्टॉक्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इसका और 2 सब टॉपिक बाकी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिमेनिंग 2 सब टॉपिक्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम, और आज हम कौन सा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं? वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड इन द अर्लियर वीडियोज़, पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने इस टॉपिक के बाकी सब टॉपिक्स देखे हैं और 2 बच गए हैं। सो लेट्स डू इट। सो first one is dependent economy. So let's study about it. Before British rule के पहले India was self reliant. India क्या था? Self reliant, produced for own use. India used to produce for own use, not for export. Export के लिए नहीं. पर after British rule, imported even basics like cotton goods, salt, sugar, ठीक है। So British rule के बाद एकदम basic चीज़ें भी इंपोर्ट करने लगा, ठीक है। बिकेम डिपेंडेंट ऑन इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड पे डिपेंडेंट हो गया फॉर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। उसके बाद सो द लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। सो लेट्स स्टडी कॉस्ट पार्टीशन ऑफ 1947, ठीक है। इंडिया स्प्लिट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो पार्टीशन के बाद इन 1947 इंडिया 2 कंट्रीज़ पे डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो लेट्स सी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो पार्टीशन का नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या था? रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम। तो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज थे। उसके बाद प्रेशर्स ऑन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी, प्रेशर था रिसोर्सेज और इकोनॉमी में, बहुत प्रेशर था। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज था। कॉटन, जूट एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। तो कॉटन और जूट एरियाज जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। अफेक्टेड इंडियन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज बैडली। तो जो पार्टीशन था उसने इंडिया का जो टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री है उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड शॉर्टेज बहुत था। पंजाब एंड सिंध फूड सरप्लस वेंट टू पाकिस्तान। तो जो पंजाब और सिंध एरिया था वो फूड सरप्लस था, बहुत ज़्यादा फूड था, वो पाकिस्तान के अंडर चला गया। इंडिया सफर्ड सीरियस फूड क्राइसिस। तो जो इंडिया था उसको सीरियस फूड क्राइसिस को सफ़र करना पड़ा। नंबर 4 इज़ लॉस ऑफ मार्केट। तो मार्केट का लॉस हुआ। कॉटन, टेक्सटाइल, शॉप, ग्लास इंडस्ट्रीज लॉस्ट डिमांड। तो इन सारी इंडस्ट्रीज ने डिमांड लूज कर दिया। मार्केट्स वेर नाउ इन पाकिस्तान। तो जो मार्केट्स थे वो अभी पाकिस्तान में थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो पहला पॉइंट है रेलवेज एंड रोड्स गॉट डिवाइडेड। तो जो रेलवेज और रोड्स थे वो डिवाइडेड हो गए। हैवी बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी में एक हैवी बर्डन आया, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। द इकोनॉमी वी इनहेरिटेड, जो इकोनॉमी हमने इनहेरिट किया था इन 1947 वाज ब्रोकन, डिवाइडेड एंड पुअर।
ठीक है, बट इट ऑल्सो कैरिड द पोटेंशियल टू राइज। ठीक है, तो जो इकोनॉमी हमने इनहेरिट किया था 1947 में, वो क्या था, वो ब्रोकन था, डिवाइडेड था एंड पुअर था, पर उसके पास एक पोटेंशियल था राइज होने का। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।